Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about an important animal. Okay, so it looks a little like a plump dolphin and a little like a seal, but it only eat plants. So this beautiful marine mammal is called the dugong, or many people call it the sea cow. Okay, sea cow. So this is why it's called sea cow, because it grazes underwater just like cows graze on the grass ना. तो जैसे cows ग्रास खाती है, तो वैसे ही ये डुगोंग भी जो सी फ्लोर पे उगी हुई घास होती है उसको खाता है ये. ठीक है. But today students, sea cows in India are in deep trouble. Their numbers have fallen sharply. और साइंटिस्ट को इस चीज की चिंता है कि अब ये बहुत जल्द इंडिया के जो शोर्स हैं जहां पे ये प्रेजेंट होता है, ये वहां से डिसअपियर हो जाएगा इफ वी डोंट एक्ट फास्ट. तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. सबसे पहले डुगोंग्स को, जैसे मैंने आपको बताया, क्या है, ये मरीन मैमल्स हैं. दे आर मैमल्स. So just like dolphins and whales are mammals, so dugong are also mammals. And they breathe air, they give birth to babies, they produce milk for their young ones. Mammals क्या होते हैं आपको पता है ना, जो who produce milk for their young ones. So they give birth to babies and they produce milk. Now उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, so they have round smooth body and they have a tail shaped like a dolphin's fluke. जैसे डॉल्फिन्स के जैसे होता है ना, तो वैसे ही इसका टेल का शेप है. और yes, as you can see, it has a big snout for grazing on seagrass. Okay, and you can call it as a gentle slow moving personality. जैसे काव होती है ना एकदम जेंटल टाइप में, वैसे ही है, इसीलिए इसको सी काव भी बोलते हैं. ओके. और आपको पता है, जो एंशियंट सेलर्स थे पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे, उनको क्या लगता था कि जो डुगोंग्स है दे वर मरमेड्स. So from far away, their smooth body and movements look like mysterious sea creatures. तो उनको लगता था कि ये mermaids हैं. Okay? तो जो adult dugongs होते हैं students, they can be, yes, yes, they can be uh, 10 meters, 10 feet, 10 feet long, 10 feet long, 10 feet long, and they weighs around 420 kg. ओके. लेकिन ये क्या होते हैं, वेजिटेरियन, मतलब दे डोंट ईट मीट, दे ईट ग्रास एंड देयर फेवरेट फूड इज सी ग्रास. सी ग्रास जो जो सी के फ्लोर पे जो घास उगती है, ये वो खाता है. ठीक है. तो सी वीड या एल्गी ऐसा कुछ नहीं खाता. जो एक्चुअल में जो सी ग्रास होती है, मेडोज पे उगती है अंडर वाटर, इट्स लाइक अ ग्रीन कारपेट, तो उसको ये खाता है. और इंडिया में डुगोंग्स कहाँ कहाँ पर है? दे आर They live mainly in Gulf of Kutch, Gujarat, Gulf of Mannar. यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, वहां पे है ना, पाक बे रीजन जो है, तमिलनाडु के क्रॉस करके. एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे भी यस, राइट. सो here also they are located in Andaman and Nicobar Islands. And students, their population has dropped so much that India lists dugongs under Schedule 1 of the Wild Protection Act 1972. तो इसको किसके अंडर रखा गया है? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Here, Schedule 1, Wildlife Protection Act 1972. मतलब इट हैज द हाईएस्ट प्रोटेक्शन. जैसे टाइगर्स और एलिफेंट्स को है, वैसे प्रोटेक्शन मिला है डुगोंग्स को. अब you might be wondering why dugongs are important. Why should we care about a sea animal that most of us have never seen? है ना? Students, dugongs are super heroes of the sea. इवन उनको देखने से लगेगा ये कितने स्लो से है, स्लो मूविंग है, लेकिन वो सुपर हीरोज है. क्यों? क्योंकि देखो,
डुगोंग्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, दे ईट सी ग्रास, सो दे ट्रिम द लीव्स एंड अपरूट ओल्ड शूट्स। तो एक तरीके से ये नेचुरल कटिंग है। अब नेचुरल कटिंग करते रहते तो उसकी वजह से क्या होगा, इट प्रिवेंट्स ओवर ग्रोथ, इट अलाउज न्यू सी ग्रास टू ग्रो, एंड इट कीप्स द एंटायर इकोसिस्टम स्टेबल। So just like mowing a lawn, it keeps it neat. Dugongs keep the sea floor clean and balanced. Okay? और जो सी ग्रास meadows होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट carbon sinks on earth. They absorb and store huge amount of carbon dioxide. So if any ocean body or any water body is having healthy seagrass, so that means that it will capture more carbon. So dugongs indirectly, students, help this process by maintaining the meadows. Okay? और देखो क्या करते, देखो जब वो ग्रास को खाते हैं तो डुगोंग स्टर न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर, जैसे जैसे वो खाते हैं तो वो जो पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी स्टर करते रहते हैं. So this helps small fish, shellfish, sea cucumbers, and many commercial important species. So dugongs help fishermen too. एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो सी ग्रास है, सी ग्रास एरिया विद डुगोंग्स, इट क्रिएट ओवर 2 करोड़ वर्थ ऑफ एक्स्ट्रा फिश एवरी ईयर. ओके, क्योंकि डुगोंग्स की वजह से उनका जो खाने का पैटर्न है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे और जो दूसरी फिशेस हैं उनको भी they also flourish. Okay, now the question is, why are dugongs in danger? Dugongs danger in क्यों है, क्या reason है? Why are dugongs in India at risk? So once upon a time, students, dugongs were common in Indian waters, and now scientists have estimated that there are only 400 to 450 individuals left. Some some also believe that the number is less than 250. So why is this happening? Number one, of course, आपको पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर होम्स. तो डुगोंग्स दे लिव इन शैलो कोस्ट. ओके, शैलो कोस्ट पे वो रहते हैं. तो वहीं पे जहाँ अब शैलो कोस्ट है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ह्यूमंस क्या करते हैं, दे बिल्ड पोर्ट्स, ले पाइपलाइन, दे डंप वेस्ट, दे रिक्लेम लैंड, है ना, फिशिंग ऑपरेशन होते हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि इस एक्टिविटीज की वजह से सी ग्रास मेडोज, ओके, सी ग्रास मेडोज, seagrass meadows uh, have been destroyed, and it is the only source, only food source for dugongs. तो अब यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर वो क्या खाएंगे, राइट? और कई बार क्या होता है कि डुगोंग्स इतने स्लो मूव करते हैं दैट दे कैनॉट एस्केप क्विकली द फिशिंग नेट्स. सो मेनी गेट एक्सीडेंटली ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एंड दे डाई. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर देयर डिक्लाइन, कि जो फिशिंग नेट है उसमें फंस जाते हैं बेचारे, और वो फिर वहां से नहीं निकल पाते क्योंकि वो इतना स्लो मूव करते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं. Okay, and then pollution, toxic chemicals, it enters the sea through industrial waste, agriculture runoff, oil spill. अब इससे क्या होता है कि बहुत डेंजरस मेटल्स जो है वो भी पानी में चले जा रहे हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड. So it enters it enters inside dugong organs, and these metals, they settle in sea grass beds and they enter the dugong bodies when they eat. ओके, तो ये भी एक रीजन है. और इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन among dugong, so female dugongs, they give birth only once every few years. So even if many die, the population cannot recover quickly na. Okay, और इंडियन कोस्टल वाटर आपने देखा होगा, अगर इफ समवन इज लिविंग नियर द कोस्ट, दे हैव सीन दिस दैट इट हैज हाई टर्बिडिटी. हाई टर्बिडिटी मतलब कि मडी अनक्लियर वाटर है जो इंडियन कोस्टल वाटर जो होता है. सो इट हार्म सी ग्रास प्लांट्स, इट ब्लॉक सनलाइट एंड मेक्स इट हार्डर फॉर डुगोंग्स टू फाइंड फूड. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे निपटने के लिए, देखो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे यस, सो टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स 2010. So Ministry of Environment created a team to study threats and guide conservation work.
और डुगोंग रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार के साथ में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का एम यही है कि जो सी ग्रास है उसको पहले रेस्टोर करना है, क्योंकि अगर वही खराब हो जाएगा सबसे पहले तो इससे डुगोंग्स को हार्म होगा, राइट? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज ऑल्सो बीन क्रिएटेड, so declared, Tamil Nadu declared a special reserve in Park Bay, and which is what you can call it as a first of its kind in India, because the goal is to protect seagrass. ओके, सी ग्रास को प्रोटेक्ट करना है एंड रिड्यूस द डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, और जो डुगोंग की पॉपुलेशन है उसको रिकवरी करने के लिए टाइम देना है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अब इससे और ज़्यादा भी हमें स्टेप्स देने की ज़रूरत है, स्पेशली इन यू नो रिड्यूसिंग फिशिंग रिलेटेड डेथ्स, क्योंकि अब वो तो एक्सीडेंटल डेथ्स है। अब देखो उसमें फिशिंग नेट में जो फंस जाते हैं, राइट? एंड साइंटिस्ट ऑल्सो से दैट वी basically need to make more effort in protecting seagrass areas. Okay, now why we are saying this? Because students, saving dugongs is not just about protecting one animal. ऐसा नहीं है। अगर डुगोंग को सेव करेंगे तो पूरा एंटायर इकोसिस्टम जो एक हेल्दी कोस्ट प्रोवाइड करा रहा है, बेटर फिशरीज प्रोवाइड करा रहा है, क्लीनर ओशन प्रोवाइड करा रहा है, वो सब सेव हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन डुगोंग्स वैनिश, द सी ग्रास मेडोज आल्सो कोलैप्स. And when seagrass collapse, fish disappear. When fish disappear, coastal communities suffer. So dugongs are like the foundation stone. They are small, quiet, but they are extremely important. And dugongs के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, they lived in Indian Ocean for millions of years. They survived storms, predators, climate change, but now they are struggling to survive human activities. So we must protect these gentle sea cows by saving grass, seagrass, reducing pollution, practicing responsible fishing. See, fishing, yes, it is important. So practicing responsible fishing is again important, very important, and supporting conservation efforts. So every action that is being taken to protect the ocean, it will help dugongs, and it will also ultimately help ourselves. So students, that will be all for today. Thank you for listening, and I hope this episode inspires you to care about our amazing underwater world. Okay, bye bye students, take care.